خوشخبری آیا مسیح خوشخبری آیا مسیح. میری طرف سے آپ سب کو سلام، سننے والوں کو اور سینئر پاسٹر انور فضل اور ان کی تمام ٹیم کو خدا ان کے عظیم اور جلالی نام میں اسلام قبول ہو. اور میرا نام روت طارق ہے اور میں جلو پارک سے ہوں. اور ہمارا جو لنک ہے جو منسٹری ہے وہ RM ٹیم ہے اور ان کے لیڈر پاسٹر آصف عزیز ہے. اور آج ہمیں خدا کے کلام میں سے جو خدا کی طرف سے مجھے ملا، آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ خدا کا کلام مجھے اور آپ کو کیا سکھاتا ہے. میرے ساتھ دیکھیں یعقوب کا خط اور اس کا 4 باب اور اس کی ہم 4 اور 5 آیت پہ غور کریں گے. اے زنا کرنے والیوں، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا؟ بس جو کوئی دنیا کو دوست بنانا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے. خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی برکت. یہاں پہ خدا کے بندہ پالوس رسول جو ہے بڑی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ جو خدا دنیا کو دوست بناتا ہے وہ خدا سے دشمنی کرتا ہے. اور ہم خدا یسوع مسیح کے کلام سے، اس کے نام سے جدا ہو کر یسوع مسیح نے فرمایا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. خداوند کے بندہ یہاں پہ دنیا سے دوستی اور خدا کے ساتھ جو ہے ہم دوستی کرنے سے ہم ابدی زندگی پاتے ہیں. اور اگر ہم دنیا کو دوست بناتے ہیں تو ہم خدا سے دشمنی کرتے ہیں. اور دنیا کے ساتھ دوستی کرنا ہلاکت کی طرف لے کر جاتا ہے. یسوع مسیح کے ساتھ دوستی کرنا ہمیں ابدی زندگی میں داخل کرتا ہے. ہم بائبل مقدس میں سے دیکھ سکتے ہیں جیسے موسیٰ بیٹے نے دنیا کے نوجوانوں کے ساتھ دوستی کی تو وہ اس کا کیا حال ہوا، اور اس نے اپنے ساری جائیداد اپنے باپ سے لے کر اور وہ عیش و عشرت میں دوستوں کے ساتھ اڑا دی. لیکن جب وہ دوست روپیہ پیسہ ختم ہو گیا تو پھر وہی دوست اس کو سب دوست چھوڑ جاتے ہیں. اسی طرح جب ہم دنیا داری میں بہت سارا وقت دنیا کو دوست بناتے ہیں، جیسے آج کل بڑا نیٹ ورک ہے، موبائل کو دوست بنایا ہے، ہم دوستوں میں خوش رہنا چاہتے ہیں، ہم بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، ہم بزرگوں کے ساتھ کھانا نہیں کھانا چاہتے، ہم بزرگوں کی تابع داری نہیں کرتے، کیونکہ اس لیے کہ ہم نے اپنے دوستوں کو اول درجہ دے دیا ہے. تو دوست ہمیں جیسے ہم موسیٰ بیٹے کو چھوڑ گئے مجھے اور آپ کو بھی چھوڑ دیں گے، تنہا رہ جائیں گے. تو جب ہم تنہا رہ جائیں گے تو ہم کسی بھی کام کے نہیں ہوں گے، ہم محتاج ہو جائیں گے، ہم غربت میں چلے جائیں گے. اور جب ہم اس دوست کے پاس جائیں گے جس کے ساتھ ہم نے بڑا وقت گزارا ہے لیکن وہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہارا دوست ہوں، اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں تیرا باپ ہوں، میں تیری ماں ہوں. اور یسوع مسیح جب کہتے ہیں کیونکہ وہ جہاں بھی بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں. اور کلام مقدس میں خدا یسوع مسیح کے جو لفظ ہیں وہی سچ ہیں، کیونکہ میں اور آپ جو بھی وعدے کرتے ہیں ہم ان وعدوں کو بھول جاتے ہیں، ہم ان وعدوں کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمارا الہی ساتھ ہے، وہ الہی مددگار ہے، وہ الہی دوست ہے جو ہمیں ابدی زندگی میں داخل کرتا ہے. آئے ہم ذرا دیکھیں وائس کی کتاب اور اس کا 11 باب جہاں پہ جوانوں کے بارے میں نصیحت کی گئی ہے. جوان تو اپنی جوانی میں خوش ہوں، اس کے ایام میں اپنا جی بہلا اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل. یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھے عدالت میں لائے گا. یہ دنیا فانی ہے، ہم یہاں پہ پردیسی اور مسافر ہیں، اور ہم نے اس دنیا کے ساتھ دل لگایا ہے اور ہم نے اس دنیا کو دوست بنایا ہے. یہ دنیا سب کچھ اگر آج یسوع مسیح آ جائے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. ہماری ساری رشتہ داریاں،
हमारी सारी दोस्ती जिनको हम अपने वालिदैन से ज़्यादा अजीज रखते हैं, हम अपने बहन भाइयों से ज़्यादा अजीज रखते हैं और जिनके लिए हम बहुत नुकसान भी कर देते हैं, लेकिन ये सब कुछ फ़ानी है। और खुदा का बंदा जो है सुलेमान बादशाह जो है वो हिकमत की बातें हमें बताते हैं कि जवान जो अपनी जवानी में खुश हो और उसके आम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। एक वक्त आएगा कि अब खुदा के मुंह की बातें पूरी हो रही हैं, अब खुदा का कलाम नबूवती कलाम पूरा हो रहा है। यीशु मसीह की आमद करीब है। आए नौजवानों, बेटियों, बेटों जो दुनिया से दिल लगाया है, ये मोबाइल को खुदा बनाया है, ये मोबाइल हमें बचा नहीं सकता, ये नेटवर्क हमें बचा नहीं सकता, बल्कि खुदा का कलाम मुझे और आपको अबदी जिंदगी में अबदी जीवन दे सकता है। जो हम दुनिया के दोस्त को हम जीवन साथी समझते हैं, ये मुझे और आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन जो हमारा हकीकी दोस्त है, जो हमारा हकीकी दुल्हा है, वो कभी भी हमें धोखा नहीं देता, बल्कि वो अपने साथ आसमान की बादशाही में मुझे और आपको ले जाने के लिए उसने आसमान को छोड़ा, जमीन पर उतर आया ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। जब हम खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करते हैं, कलाम में लिखा जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहते हैं कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। आज हम अपनी जवानी की सारी रवशों को एक तरफ करें, जिस तरह हमारे बुजुर्ग मूसा ने सब कुछ तरह किया, हमारे बुजुर्ग यूसुफ ने सारी जवानी की रवशों को एक तरफ किया, हमारी प्यारी बहनें जो जवानी की आम में दोस्तों की तरफ माइल होती हैं, ड्रामे फिल्में गाने में अपना दिल बहलाती हैं, लेकिन हमने अपना दिल बहलाना है। खुदा का कलाम सिखाता है हमें खुदा को दोस्त बनाना है। अगर हम दुनिया को दोस्त बनाएंगे तो हलाकत की तरफ लेकर जाएंगे अपने आप को, मौत की वादियों में जाएंगे, हम गहरी दलदल में धंस जाएंगे जहाँ पे मुझे और आपका कोई नहीं निकालने वाला होगा। वहाँ पे सिर्फ मेरा और आपका यीशु होगा। लेकिन कब होगा? जब मैं और आपको उसको पुकारेंगे, उसको पुकारेंगे। अरे खुदा हम मर रहे हैं, हम डूब रहे हैं, हमारा सांस नहीं आ रहा। जब हम ये खुदा यीशु मसीह को पुकारेंगे तो खुदा फरमाता है मुसीबत के दिन तू मुझे पुकारेगा और मैं तुझे जवाब दूंगा, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। आइए हम इसी तरह एक और हवाला देखेंगे ज़बूर 119 में और उसकी 10 आयत में लिखा है जवान अपनी रवश को किस तरह पाक करेगा खुदा उनके कलाम पर निगाह रखने से। जवान अपनी रवश को किस तरह पाक करेगा? जवान अपनी रवश को खुदा के कलाम से पाक करेगा। और ये हमसे नहीं हो सकता, ये हम खुद नहीं पाक हो सकते। जब हम खुदा के बंदा ज़बूर नवीस की तरह कहेंगे अखियां चुक ना है मैं वाल पहाड़ा मदद लई मैं किसने पुकारा। जब हम यीशु के कदमों में बैठ जाएंगे, जब हम अपने यीशु को दोस्त बना लेंगे, जब हम यीशु को पुकारेंगे कि वो ही हमारा सच्चा दोस्त है, वो ही हमारा बाप है, वो ही हमारा दोस्त है और वो ही हमारा निजात देने वाला खुदा है, जो हमारा मददगार है, जिसने फरमाया कि मैं तेरा दिल हाथ पकड़कर मदद करूंगा। आज हम दुनिया की इधर उधर मारे मर फिरते हैं कि शायद हमें कोई मदद मिल जाए, कोई सहारा मिल जाए, लेकिन यीशु के बगैर हम कुछ भी नहीं। यीशु ने कहा कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। हमें यीशु से मुलाकात करनी है, हमने अपना दिल यीशु को देना है। आए हम देखें फिलिपियों का खत और उसका हम पहला बाब देखेंगे। और ये दुआ करता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत इल्म और हर तरह की तमीज के साथ और भी ज्यादा होती जाए, ताकि उम्दा बातों को पसंद कर सको और मसीह के दिन तक साफ दिल रहो और ठोकर ना खाओ और रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है भरे रहो, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो और उसकी सताइश हो।
आज हम बहुत सारी बातों में वक्त गुजारते हैं, हम अपनी बुराई करते हैं, अपने दोस्तों की बुराई करते हैं और अपने कामों की बुराई करते हैं और उन सब बातों पर फख्र करते हैं। लेकिन खुदा का बंदा फरमाता है, दाऊद नबी फरमाते हैं, मेरी रूह खुदा पर फख्र करेगी। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल फरमाते हैं कि मैं अपनी कमजोरियों पर फख्र करूंगा। आज हम अपनी कमजोरियों पर तो फख्र नहीं करते, लेकिन अपने कामों पर फख्र करते हैं जो खुदा को पसंद नहीं है। जो खुदा ने सबसे पहले जो आसमान पर फख्र हुआ, जो खुदा का फरिश्ता लूसीफर फरिश्ता, जब वो पहले मबसूफ फरिश्ता था, खुदा की हम्द सना करता था, लेकिन जब उसकी जिंदगी में फख्र आया, घमंड आया, उसने बहुत सारे लोगों को अपने फरिश्तों को अपने पीछे लगा लिया, तो वो आसमान से नीचे गिराया गया। इसी तरह जब हम भी फख्र में आ जाते हैं, हम भी उम्दा बातों को, खुदा के कलाम को पीछे कर लेते हैं, खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते, सुबह सवेरे उठते हैं और हम मोबाइल में देखना शुरू कर देते हैं, मोबाइल में टिकटॉक देखते हैं, गाने देखते हैं, गाने सुनते हैं, नाच रंग देखते हैं, जो खुदा का कलाम मुझे और आपको इजाजत नहीं देता। इसलिए हमें चाहिए कि जैसे खुदा का बंदा फरमाता है कि मैं ये दुआ करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत इल्म और हर तरह की तमीज़ के साथ और भी ज़्यादा होती जाए, ताकि उम्दा बातों को पसंद कर सकूं और मसीह के दिन तक साफ दिल रहो। आज अगर हम साफ दिल होना चाहते हैं तो हमें मसीह के साथ, मसीह से उम्दा बातें सीखना चाहते हैं, तो खुदा का बंदा ज़बूर नवीस फरमाता है कि खुदांदा तो लश्करांदा खुदा है, ठिकाना तेरा मैंने चंगा लगा है। और खुदा का मज़हबा है जो मुझे और आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाता है, तमीज़ की बातें सिखाता है, उम्दा बातें सिखाता है, खुदा की बादशाही के लिए तैयार करता है, हर बदी बुराई से हमें बचाता है, हर ज़नाकारी से बचाता है, हर हराम करी से बचाता है। क्योंकि हम खुदा के मज़हबा पर जब बैठ जाते हैं तो वो मुझे और आपको यहाँ पर जैसे लिखा है कि वो साफ दिल हो और ठोकर ना खाए और रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है भरे रहो, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो। आज हमारी जिंदगी में हम होठों से तो ताज़ीम करते हैं, लेकिन दिल जो हमारे खुदा के साथ नहीं है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब हम नौजवान बेटियों बेटों को देखते हैं वो होठों से ताज़ीम कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी जिंदगियां देखते हैं तो वो कलाम से खाली हैं, इसलिए कि वो खुदा के कलाम को समझना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते। लेकिन ज़बूर 119 में खुदा का बंदा बार बार ये फरमाता है, खुदा तू मुझे अपने आइन सिखा, खुदा तू मुझे उम्दा बातें सिखा, खुदा तू मुझे पा कर। वो अपने गुनाहों का इकरार करता है। आज हम अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते, आज हम अपने आप का खुदा के ताबे नहीं करते, खुदा के पाक के ताबे नहीं करते, खुदा के साथ वक्त नहीं गुजारते, खुदा के लोगों के साथ वक्त नहीं गुजारते, खुदा के लोगों के साथ हम ध्यानदारी से नहीं चले। हम उनके सामने जो है बड़ा उनको अप्रिशिएट कर रहे थे, जैसे वो कदम बाहर रखते हैं तो हम उनके खिलाफ बोलना शुरू हो जाते हैं। ये उम्दा बातें नहीं है, ये साफ दिली नहीं है। खुदा का कलाम जो है वो मुझे और आपको इत्मीनान से भर देता है। और अगर हम देखें मुकाशवा की किताब में तो वहां पे हमें मिलता है, यूं ना आरफ बयान करते हैं कि मैं तुझे सलाह देता हूं ताकि तो अबदी जिंदगी में दाखिल हो जाए। खुदा का कलाम मुझे और आपको सिखाता है कि मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग से तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि तू दौलतमंद हो जाए और सफेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन की जाहिर होने के लिए शर्मिंदगी ना उठाए। और शर्मिंदगी, नंगापन जो है वो गुनाह को जाहिर करता है, और जो पाक रूह है वो हमारा सफेद पोशाक पहनने से मुराद है कि हम अपनी जिंदगी में खुदा के पाक रूह को लें। खुदा का कलाम हमें सिखाता है, यूं नारफ यहाँ पे बयान करते हैं खुदा के कलाम में से, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ ताकि तू आग से तपाया हुआ सोना खरीद ले, आसमान की बादशाही खरीद ले, आसमान से जो कुव्वत का लिबास है वो खरीद ले, ताकि तू जब यीशु मसीह आए तो ये हम आदम की तरह ये ना कह सके कि खुदा हम नंगे हैं, हम ये ना कह सके आए पहाड़ों टीलो हम पर गिर पड़ो, हमें खुदा के गजब से बचा लो। इसी तरह मैं एक और हवाला देखेंगे फिलिपियों के खत में कि खुदा का बंदा यहाँ पे बयान करता है
कि जो चीज़ें मेरे नफ़ा की हैं मैं उनको कूड़ा समझता हूँ ताकि मसीह को हासिल करूँ। तीसरा बाब और उसकी 7 आयत में देखेंगे जितनी चीज़ें मेरे नफ़ा की थी उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया, बल्कि मैं अपने खुदा मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीज़ों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातिर मैंने सब चीज़ों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ ताकि मसीह को हासिल करूँ। आज मसीह को हासिल करने के लिए हमें खुदा से दोस्ती करने की जरूरत है। आज मसीह को हासिल करने के लिए उसके मज़हब पर जाने की जरूरत है। खुदा के मज़हब है जो मुझे और आपको पाक करता है। वो है जगह सोनी सुथरा हिस्सा मेरा जो चुना गया है, जो खुदा ने मेरे और आपके लिए खुदा का मज़हब जो मुझे और आपको पाक करता है, वो आग से तपाया हुआ सोना देता है, आसमान की बादशाही के लिए तैयार करता है। वो हमें हलाकत के लिए नहीं बल्कि वो हमारी बेहतरी के लिए कहता है, ताकि हम दुनिया को जो है जैसे खुदा का बंदा यहाँ पे बताता है कि जितनी चीज़ें मेरे नफ़ा की हैं मैं उनको कूड़ा समझता हूँ और इनका एक तरफ करता हूँ ताकि मसीह को हासिल करूँ। आज मसीह को हासिल करने के लिए जितने नौजवान बेटियां बेटे हैं मैं उनसे इल्तमास करूंगी, क्योंकि कलाम में लिखा है कि वक्त आएगा तो कलाम उठा लिया जाएगा। उन 5 कुंवारियों की मां ने जिन्होंने देर लगाई, जिन्होंने सोचा कि अभी यीशु मसीह की आमद करीब नहीं है, अभी वक्त है, अब वक्त बिल्कुल करीब है, अब आमद सानी यीशु मसीह की करीब है। हम उन 5 कुंवारियों से सीखें, उन नौजवान बेटियों से सीखें, अपने बुजुर्ग इब्राहिम की तरह और बुजुर्ग याकूब की तरह अपना दिल यीशु के साथ लगा लें, बुजुर्ग मूसा की तरह खुदा के साथ दिल लगा लें। खुदा आपको बरकत दे इस कलाम के सिले से, आमीन। आइए हम दुआ करें। हालेलुया हालेलुया सी बरासी कला रासी का बरासी ना राजीना शिला रासी का बरासी कला रासीना। अरे खुदा पाक करो तेरा शुक्र, रब्बुल फाज तेरा शुक्र। मैं नौजवान बेटियों के लिए, बेटों के लिए, बच्चों के लिए तेरा हाथ मांगती हूँ मेरे खुदा, उन बहनों के लिए जो अपने खुदा के साथ, अपने शोहरों के साथ, अपने खानदान के साथ, अपने लीडर्स के साथ वफादार नहीं है, जिन्होंने दुनिया को दोस्त बनाया है, और नौजवान बिलखसूस जो नशे की लानत में है मेरा खुदा। खुदा उन्होंने अपने दोस्तों को वो दर्शा दिया और वो उनको हलाकत की तरफ लेकर जा रहे हैं। ऐ खुदा बहन भाइयों की दुआ पर कान लगा जिनके बेटियां बेटे नशा करते हैं। ऐ खुदा आज के खूबसूरत कलाम के वसीले से तेरी बेटियां बेटे ऐ खुदा तेरे साथ दोस्ती करनी शुरू करें, अपने खुदाम को वो दर्जा देना शुरू करें जो हमारे निजात दहिंदा है, जिसने कम 40 कोड़े खाए, जिसने हमारा फिदिया दिया, किसी दो से हमारा दिया नहीं दिया, किसी दौर से हमारा कफारा नहीं दिया। हमारे खुदा यीशु नासी ने जो हमारा अज़ल से अब तक खुदाम है, खुदा एक है, मनसूबा एक है, वो कौमों कबीलों उम्मतों के लिए जमीन पर आया ताकि सब कौमें कबीले उम्मतें निजात पाए, जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। ऐ खुदा ने अपने बच्चों को कसरत की जिंदगी अता करना और फजल बख्शना जब तेरे लोग रात दिन तेरे लोगों के लिए शिफायत करते हैं। ऐ खुदा की दुआ पर कान लगाना। हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, बनी नौ इंसान के गुनाहों का इकरार करते हैं। तमाम ऐ खुदा कोई भी नेककार नहीं है, एक भी रास्तबाज नहीं है, ये सब तेरे फजल से जितने लोग टीवी के वसीले से खुदा तेरी आवाज को सुनते हैं, खुशखबरी का कलाम और खुदा हर रोज सुबह मैसेज होता है। खुदा तेरे लोग जो कलाम सुनाते हैं उन तमाम खुदा कलाम की बातों को कसरत से दिल में बसने दे ताकि आने वाली नस्लों को तरबियत दे देकर ऐ खुदा सवारे और अबदी निजात दहिंदा के हाथ में दे, खुदा के खादमों के हाथ में दे, सूरवार लीडर बने ताकि हर तरह के नशे की लानतों से बच जाए और ये सारा इज्जत जलाल तेरे नाम को मिले। बड़ी बरकत देना, सब कुछ मांगते यीशु नासी के नाम से, आमीन। खुशखबरी खुशखबरी आया मसीह, आया मसीह।